Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve few MCQs of chapter Perimeter and Area of class 6. First MCQ है The outer boundary of a closed figure is called perimeter. तो ऐसे आपके पास कोई भी closed figure है of any shape, तो उसकी जो outer boundary है उसको बोलते हैं perimeter. Second question है Find the perimeter of given figure. अब perimeter क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो यहाँ पर बाउंड्री कैसे बन रही है? इन 5 साइड से. तो पांचों साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे. वी विल गेट द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5. So this is equal to 5 plus 5 10 plus 8 18 plus 7 plus 6 13. So this is equal to 8 plus 3 11, 1 carry 1 2 3. So 31 centimeter. So B part is your answer. Third question है perimeter of an equilateral triangle is. अब equilateral triangle की तीनों sides की length equal होती है. So equilateral triangle का perimeter कितना आ जाएगा? Side plus side plus side. So this is equal to 3 into side. So sides को हम 3 बार ऐड करेंगे. So that is equivalent to 3 into side. तो ऑप्शन D is the correct answer. Question 4th है perimeter of rectangle. तो ऐसे एक rectangle ले लो आप. अब longer sides को हम denote कर देते हैं L के साथ, shorter sides को denote कर देते हैं B के साथ. So perimeter कितना आएगा? Perimeter is equal to sum of length of all its sides. So सारी sides की length को add कर दो. L plus B plus L plus B. So this is equal to 2L plus 2B. So this is equal to 2 common है तो बाहर निकाल लो. ब्रैकेट में क्या आएगा? L plus B. So this is the perimeter. So option B is the correct answer. Fifth question. If side of an equilateral triangle is 4 centimeter, then perimeter is equal to. So perimeter of an equilateral triangle कितना होता है? 3 into side. So this is equal to 3 multiply by side given है 4 centimeter. So multiply कर दो. Perimeter is equal to 12 centimeter. So C is the correct option. Sixth question है if length and breadth of a rectangle are 2.4 centimeter and 1.9 centimeter, then its perimeter is. अब perimeter of rectangle का क्या फॉर्मूला होता है? 2 multiply by ब्रैकेट में length plus breadth. So length कितनी गिवन है? 2.4 प्लस breadth कितनी गिवन है? 1.9. So this is equal to, अब इसको सॉल्व कर लो. 2.4 plus 1.9 is equal to 9 plus 4 13, 1 carry 2 plus 1 3 plus 1 4. So 4.3. So 2 multiply by 4.3. This is equal to 2 3s are 6 decimal 2 4s are 8. साथ में लगेंगे सेंटीमीटर. So 8.6 centimeter. So D is the correct option. Seventh question है the perimeter of a square is 16 centimeter, then its side is. So perimeter of square क्या होता है? 4 multiply by side. So therefore side is equal to perimeter divided by 4. So this is equal to perimeter given as 16 divided by 4. So this is 4 centimeter. So A option is the correct answer. Question number 8. The perimeter of a rectangle is 50 centimeter and its length is 12 centimeter. Then breadth is. अब perimeter of rectangle का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into length plus breadth. So this is equal to
पेरीमीटर गिवन है 50, 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ गिवन है 12 प्लस ब्रेड्थ हम निकाल लेंगे। सो 2 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 प्लस ब्रेड्थ। सो दिस इज 25। सो ब्रेड्थ कितनी आ गई? ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 माइनस 12। सो दिस इज इक्वल टू 5 minus 2 3, 2 minus 1 1, 13 centimeter. So B is the correct option. Ninth question है, two sides of a triangle are 4.8 centimeter and 3.9 centimeter. The perimeter of the triangle is 12 centimeter. Find the third side. So perimeter क्या होगा triangle का? तीनों sides की length का sum. So side 1 plus side 2 plus side 3. अब perimeter given है 12, so this is equal to two sides की length दी हुई है, so 4.8 plus 3.9 plus side 3. So 12 is equal to 4.8 plus 3.9 को ऐड कर लो, 9 plus 8 17, 1 carry, 4 plus 1 5, 5 plus 3 8. So 8.7 plus side 3. So side 3 is equal to 12 minus 8.7. So side 3 is equal to 12 minus 8.7 कर लो यहाँ पर. So 10 minus 7 3, यहाँ बचा 1, 11 minus 8 3, यहाँ से फिर 1 कैरी हो गया था इधर, सो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर बच गया 0. सो 3.3 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 10th क्वेश्चन है, Samandeep takes 3 rounds of square park of side 125 meter. Find the distance covered by her. So Samandeep स्क्वायर पार्क के अराउंड राउंड लगा रही है, तो जब वो एक राउंड कंप्लीट करेगी दैट मीन्स वो स्क्वायर के पेरीमीटर को कवर कर रही है. 3 राउंड लगाएगी मतलब वो स्क्वायर के पेरीमीटर को 3 टाइम्स कवर करेगी. सो पहले स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर निकाल लेते हैं. पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. सो 4 इंटू साइड गिवन है 125 मीटर. सो 125 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दो. 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर. अब टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज इक्वल टू 3 इंटू पेरीमीटर. So total distance covered is equal to 3 into perimeter. So 3 multiply by 500. क्योंकि उसने पार्क के अराउंड 3 सर्कल लगाए थे. जब एक सर्कल कंप्लीट किया उसने मतलब उसने एक टाइम पेरीमीटर कवर कर लिया. जब वो 3 सर्कल कंप्लीट करेगी मतलब उसने पेरीमीटर को 3 टाइम्स कवर किया. सो दिस इज 1500 मीटर. तो 1500 मीटर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो अगर हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये कितना आएगा? 1500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर. अब देखो कि 1.5 किलोमीटर ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में 1.5 किलोमीटर है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 11. The measurement of a region enclosed by a closed plane figure is called its area. So option D is the correct answer. तो ऐसे कोई closed figure हो तो उसके अंदर का ये जो सारा पोर्शन होता है इसकी मेजरमेंट को एरिया बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. If the length of a rectangle is x units and breadth is 5 units, then its perimeter is.
अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी गिवन है? x प्लस ब्रेड्थ कितनी गिवन है? 5। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 5। मल्टीप्लाई का ये जो साइन है, अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे इवन देन इट इज ओके। सो ये आ गया आपका पेरीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, find the area of the given rectangle whose length is 16 meter and breadth is 8 meter. So area is equal to length into breadth. So 16 into 8 कर दो। So this is equal to 128। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लगेगी? मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 128 स्क्वायर मीटर। सो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 144 स्क्वायर मीटर। इफ इट्स ब्रेड्थ इज 9 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया दिया हुआ है 144। अब लेंथ हमने निकालनी है, ब्रेड्थ गिवन है 9। सो लेंथ इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 9। सो दिस इज इक्वल टू 16। 16 9s are 144. So L is equal to 16 meter. So option C is the correct answer. Question number 15. 1 square meter is equal to how many square centimeter? अब 1 square meter is equal to 1 meter into 1 meter. So this is equal to, अब जब हमने 1 square meter को square centimeters में चेंज करना है तो हमें ये जो मीटर्स हैं इनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको चेंज कर दो, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 3.6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। सो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6। सो दिस इज इक्वल टू, यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 प्लस 3 21 मल्टीप्लाई बाय 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10। सो दिस इज इक्वल टू 6 8 प्लस 1 9 2 साथ में आया 1। अब यहां पर 2 डिजिट छोड़ के लग जाएगा डेसिमल। सो 12.96। अब एरिया है तो यूनिट क्या लगेगी? स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो ऑप्शंस में ऑप्शन बी है 12.96 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 12.96 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे यहां पर ध्यान देना है जब आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। सो दिस इज एरिया, सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी? स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 68 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहां से हम पहले साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। पेरीमीटर गिवन है 68, सो दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। So side is equal to 68 divided by 4. So this is equal to 4 ones are 4, 2 left, साथ में आया 8, 4 sevens are 28। और वैसे भी 17 का टेबल अगर आपको डायरेक्टली मेमोराइज है तो 17 4s are 68। So 17, so this is side, so unit of measurement क्या आएगी? मीटर। अब हम निकाल लेंगे एरिया। So area is equal to side into side, so 17 into 17। So this is equal to 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो,
वैसे अगर आपको डायरेक्टली मेमोराइज है तो 17 इंटू 17 होता है 289। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11 मल्टीप्लाई बाय 17। सो 9, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 1 2, सो 289। अब एरिया है तो यूनिट क्या लगेगी मेजरमेंट की? स्क्वायर मीटर। अब देख लो कि कौन सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। 289 स्क्वायर मीटर। So option A is the correct answer. Question 18. A marble tile is of side 25 cm by 25 cm. How many tiles will be required to cover a floor of 4 meter by 3 meter? तो यहाँ पर हम दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। एक तो हम टाइल का एरिया निकाल लेंगे, फिर हम फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम जितना फ्लोर का एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे विद एरिया ऑफ अ टाइल। डिवाइड करने से पहले आपने मेक श्योर क्या करना है कि दोनों एरियाज की यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी सेम। सो एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू 25 इंटू 25। सो दिस इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्टली मेमोराइज नहीं है 25 इंटू 25 तो आप रफ वर्क में भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज हम निकालते हैं एरिया ऑफ द फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो फ्लोर की डायमेंशंस उन्होंने मीटर्स में दी है, टाइल का एरिया हमने निकाला है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो एरिया ऑफ फ्लोर भी हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालेंगे ताकि आगे जाके इन दोनों एरियाज को हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए ये जो मीटर्स में डायमेंशंस गिवन है इनको पहले सेंटीमीटर्स में चेंज कर लेंगे। तो 4 मीटर को जब सेंटीमीटर्स में चेंज करेंगे तो 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 3 मीटर्स को चेंज करने के लिए सेंटीमीटर्स में 3 को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 300। सो दिस इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, साथ में लगे 4 zeros। सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दोनों एरियाज सेंटीमीटर स्क्वायर्स में है, तो इन दोनों एरियाज को अब हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, जो यहां पर हमने निकाला है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल विच इज 625। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप, आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं 5 के टेबल से इसको स्टार्ट कर देती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब इसको भी 5 के साथ डिवाइड कर देती हूँ। 5 2 ज़ा 10, 2 लेफ्ट, साथ में 0, 5 4 ज़ा 20, पीछे लगेंगे 3 जीरोस। अब अगेन हम इसको 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज 25, दिस इज 5 4 ज़ा 20, 4 लेफ्ट, साथ में 0, 5 8 ज़ा 40, साथ में लगेंगे एंड में 2 जीरोस। 5 5 ज़ा 25, ये कितना आ जाएगा? 5 9 ज़ा 45, 3 लेफ्ट, साथ में 0, 5 6 ज़ा 30, एंड में एक 0। अब इसको मैं फिर 5 के साथ डिवाइड कर देती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 4 लेफ्ट, साथ में आया 6, 5 9 ज़ा 45, 1 लेफ्ट, साथ में आया 0, 5 2 ज़ा 10। सो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई? 192। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने यहाँ इन दोनों नंबर्स को 5 के साथ डिवाइड करना स्टार्ट किया है। आप हायर टेबल के साथ भी डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। 19th क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ साइड इज डबल्ड? तो पहले हम स्क्वायर की साइड एज्यूम कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x यूनिट्स। सो देयरफॉर एरिया कितना आ जाएगा? एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड,
तो ये आ गया x इंटू एक्स स्क्वायर यूनिट्स। अब लिख लेते हैं व्हाट इज न्यू साइड। सो न्यू साइड कितनी है, साइड को डबल किया गया है, सो 2x आ गई न्यू साइड। सो देयरफॉर न्यू एरिया कितना आ जाएगा, न्यू एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, सो 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, सो दिस इज 4x इंटू एक्स स्क्वायर यूनिट्स। सो मतलब जो नया एरिया आएगा वो ओरिजिनल एरिया का 4 टाइम्स होगा। सो 4 टाइम्स कहां पर ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose area is 234 square centimeter and its one side is 13 centimeter। एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, वन साइड गिवन है, तो दूसरी साइड की लेंथ निकल आएगी, फिर हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एक साइड दी हुई है मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड, ठीक है। सो एरिया कितना है 234, सो दिस इज इक्वल टू 13 इंटू साइड 2। तो यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली लेंथ या ब्रेड्थ मेंशन नहीं की थी, तो मैंने यहां पर एक साइड की लेंथ को साइड 1 बोल दिया है, दूसरी साइड की लेंथ को बोल दिया है साइड 2 इंस्टेड ऑफ यूजिंग टर्म्स एज लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो साइड 2 इज इक्वल टू 234 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको सॉल्व कर लो। सो 13 वन सा 13, यहां पर हम कर लेते हैं 13 वन सा 13, क्या बचा 10, साथ में आया 4, सो 13 एट सा 104। सो यहां पर आ गया 8, सो साइड 2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो मतलब दोनों साइड्स की लेंथ को हमने ऐड करना है। सो एक साइड की लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर, प्लस कर दो उसमें दूसरी साइड की लेंथ जो हमने निकाली है। सो दिस इज इक्वल टू 13 प्लस 18 कितना आ गया, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी 1 2 3, so 2 multiply by 31, so this is equal to 2 ones are 2, 2 threes are 6, so 62 centimeter। so option D is the correct answer। so इस वीडियो में हमने काफी सारे MCQ सॉल्व कर लिए हैं। I hope this video will help you। Thanks for watching this video। See you next time। Take care। Bye।